The midnight of August 14th, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. Redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and peace. Opened fire at a group of protesters at Jamia Nagar in South Delhi on Thursday afternoon, roamed around the area for over 3 hours and even posted 3 Facebook lives from there before he opened fire. He wrote on posts on Facebook saying that Shaheen Bagh khel khatam. He has also written a post saying मेरे घर का ख्याल रखना आज़ादी दे रहा हूँ. While at Jamia, he continued to write on Facebook, मैं यहाँ अकेला हिंदू हूँ. I am the only Hindu here. His Facebook profile bio says, राम भक्त गोपाल नाम है मेरा, बायो में इतना ही काफ़ी है, बाकी समय आने पर जय श्री राम. In his display picture, he is dressed in saffron and his cover image is showing him kissing a sword. According to eyewitnesses, Gopal shouted "Ye lo Azadi" before he opened fire at students demonstrating against the Citizenship Amendment Act. जरूरी है कि जो हुआ है उस पर शांत स्वर में बात की जाए. आपकी दिल्ली बदल गई है. अब चीखने से कोई फायदा नहीं. देर बहुत हो गई. यहाँ की सड़कों पर पिस्टल लेकर घूमने वाले आ गए हैं. वोट के लिए नहीं आए हैं. वो अब आपके पड़ोस में रहने आए हैं. आप ही तो चुप थे. आप ही तो हैं जो हाँ में हाँ मिला रहे थे. इसी तरह तो 1948 तक आते आते वो शख्स अकेला हो गया जिसके साथ वो जिन लोगों के साथ वो 30 सालों तक अहिंसा को लेकर संघर्ष करता रहा, उन्हीं के बीच अजनबी हो गया. हिंदू और मुसलमान की सनक इस तरह से लोगों पर सवार हो गई कि लोगों ने गांधी को पहचानना छोड़ दिया. उसी दिल्ली में, इसी दिल्ली में 1948 में, 2020 में. Since the Modi government came back to power in May of 2019, it has moved with a real sense of urgency and a kind of clarity of purpose towards enacting a kind of pro-Hindu agenda. The most recent thing it's done is enacted this Citizenship Amendment Bill. So what the bill does is it provides expedited citizenship to illegal migrants who land up in India from one of 3 neighboring countries, Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan, if those people belong to essentially any religious community other than Islam. This was seen as actually a prelude to an even larger initiative to create a national register of Indian citizens. Many Indian citizens whose families have lived there for generations, they don't actually have the documents to help them prove their citizenship. So you can imagine a scenario where both Hindus and Muslims cannot prove their citizenship, but Hindus will be given a kind of lifeline through the Citizenship Amendment Act because they can be given amnesty essentially, where Muslims, because they're specifically denied expedited citizenship under the law, would have no other recourse. हैं कि उन्हें क्या लगता है अगर समाज में इतने रेप हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं. तन ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा. जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है. हर किसी का मूड खराब होगा. अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया पहले नहीं होते थे. क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में फैंट है. तो लड़कों का नशा करना गलत नहीं है, लड़कियों का नशा करना गलत है. अब देखिए, लड़का तो जाता है हर जगह, अकेला भी जाता है कहीं कमाने के लिए, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या विदेश. तो लड़कियां भी जा रही हैं आजकल. तो वही बात छीन लिया है. मेरे घर में भी लड़कियां हैं तो पूरे कपड़ा पहन के रहती है, चुन्नी रखती है, सलवार समीज पहनती है. और अगर अपने मर्जी से वो बोलेगी हम अपने मनपसंद का कपड़ा पहनेंगे तो आप नहीं पहनने दीजिएगा? नहीं चलेगा ही नहीं हमारे घर में. तो आपने औरतों को अपने घर के बांध के रखा हुआ है. लड़की की गलती कैसे हो सकती है? हो सकता है उसकी ये गलती है, उसने कुछ कपड़े ऐसे पहन रखे हो. मतलब ये जो बलात्कार हो रहा है ये लड़कियां खुद भी करवा रही हैं. जरा सुनिए, आप महिलाओं की काफी इज्जत करते हैं. देखो, बिल्कुल जो महिला है वही इस सृष्टि की देवी है. हाँ, मैं वो देखो आपके सामने बैठी हुई, क्या होगा इनके साथ? पर उनके साथ कुछ हो जाए तो ये सही है. हर किसी का माइंड खराब होता है, किसी का भी हो. तो जिन लोगों का माइंड खराब हो रहा है उनकी गलती नहीं है, उस लड़की की गलती है कि उसने वैसे कपड़े पहने.
Unity in diversity is a promise we made when we made India into a republic. Now, no Shah, Sultan or Samrat should renege on that promise. We respect all languages, but our mother language will always be Tamil. Jallikattu was just a protest. The battle for our language will be exponentially bigger than that. छुआछूत खत्म हो गया। जिसके साथ खत्म हो गया होगा, जिसका साथ नहीं होगा तो कहवे करेगा। जब किसी ब्राह्मण क्षत्रिय का हम सामान लेते हैं तो जो है कि वो पैसा जमीन पर रखवा पर उस पर पानी गिराते हैं कि ये शुद्ध हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि सिक्का पर पानी गिराते हो मगर नोट पर क्यों नहीं। जो ज्ञान है वो आपने बताया वो ब्राह्मणों का ही है। ब्राह्मणों का ज्ञान अर्जन धर्म है, मतलब ज्ञान पे ब्राह्मणों का ही हक है। और जो है शूद्रों को सेवा करना ऐसे बताया गया। तो मतलब जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। पंडित बोलते हैं कि इनको मंदिर में नहीं घुसने दो चमारों को। तो फिर आपने कभी ट्राई किया मंदिर जाने का? हम तो जाना ही छोड़ दिया हमने तो। जब बाहर निकाल देते हैं तो फिर कहाँ जाए बताओ। क्या बोलते हैं आपको? यह बोलते हैं चमारों का मंदिर नहीं है, चमारों को नहीं घुसने देंगे। हर गांव में एक शंकर जी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, काली जी का मंदिर है, जंगल पहाड़ पर है। एक हमारा भभुआ कैमूर जिला में विजय शंकर फकीर का मंदिर हम कई वर्ष से बनाते हैं लेकिन नहीं बनने देता है, जो चमार था वो। शहर में तो हम वो छुआछूत के हम लोग आदी हो गए हैं जो बगैर कहे हम लोगों के साथ की जाती है। किसी को हम बताते हैं कि हम वाल्मीकि हैं तो लोग हमसे बात करने का तरीका बदल देते। एक ब्राह्मण के यहाँ मैं काम करने जाता हूँ, मैंने कहा पानी पीना, हालांकि मेरे को पानी की प्यास नहीं थी लेकिन उसकी घरवाली पानी लेके आती है, गिलास के अंदर वो टूटी का पानी था। मैं कहा जानवर भी ऐसा पानी नहीं पीते। पंडित जी आप इंसानों के साथ ये काम करते हो, आप ये तो दिल्ली NCR की बात है।